Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing extremely fine in your life. So this video is basically a sit down chit chat tea with bestie kind of video. So ever since we joined our college, we used to get questions like what is that ideal roommate, how should we choose our roommate, or school best friend ke sath roommate rehna chahiye in college or not. So several type of questions like this. So we chose four best questions which we would like to answer for you all. You guys must be thinking, who is this beautiful person sitting next to me? So she is my best friend and my supportive roommate, Soumi Chatterjee. Hi. So we have been roommates since 3 years now. So I guess we are eligible candidate to answer these questions for you. So without any further delay, let's get started with the video. So the first question is, should we be roommates with our best friends? You go first. आई थिंक येस वी कैन बी रूममेट्स विद अ बेस्ट फ्रेंड. जब हम शुरुआत में आए थे तब लोगों ने बोला था कि हमें कभी भी अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ रूममेट नहीं बनना चाहिए एंड नहीं बनना चाहिए. एंड फॉर अस आई थिंक दैट इट वर्कड फॉर अस बिकॉज जब कि हमें मिले इतना टाइम नहीं हुआ था जब हम रूममेट्स बने थे. सो लाइक व्हेन वी फर्स्ट मेट वी ओनली मेट इन ऑनलाइन and when we physically met, and that was the time when we became roommate, so we still had a lot of things to explore about each other's personalities, so we were still new for each other, and for that I think it worked for us, and 3 years is the best time I ever had with her. So yeah, like, and for some people we know it didn't work because they think that they are not out of their comfort zone, and they feel that they are being limited by their best friends or like that. But for us, in our case, that was not the reason, as we were still exploring, trying to get to know about each other as well as about the whole college and the hostel system. So I think that worked for us. What about you? Yeah, I guess you can be roommates with your best friend, but the only thing you have to keep in your mind is that you both are ready to adjust somewhere. Like किसी ना किसी चीज को किसी ना किसी को एक बार तो एडजस्टमेंट करनी ही पड़ेगी अगर रूम में साथ रह रहे हो. तो मेरे ख्याल से आप रह सकते हो, बट अगर आप स्कूल बेस्ट फ्रेंड की बात करो, लाइक वी मेट इन कॉलेज एंड वी बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स इन कॉलेज. So it was fine for us, we were having different topics, we were having different things to talk about. But अगर आप अपने स्कूल फ्रेंड को लेके कॉलेज में आ रहे हो ना, then I don't think so you should be like roommates, because हमने अच्छे से अच्छे रिलेशंस को यहाँ पे बिगड़ते हुए देखा है जो स्कूल बेस्ट फ्रेंड्स थे और वो हॉस्टल में आए. बिकॉज फिर वो कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं थॉट्स के, चॉइसेस के एंड सब चीज के. until unless your best friend is very supportive and very kind person, go ahead, otherwise go for something else. वही वही एंड आई ऑल्सो थिंक कि लाइक जब जो स्कूल बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो प्लान करते हैं कि हम कॉलेज में जाके रूममेट्स बनेंगे, वो लोग अपने लिए बहुत अनएक्सेप्शनल, मतलब बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं कि तुम ऐसे करोगे तो मैं भी ऐसे करूँगी, ऐसे करके. एंड जैसे वो इन्वायरमेंट में आते हैं तो वो नहीं वो एक्सपेक्टेशंस कीप अप कर पाते हैं, एंड द अदर पर्सन माइट गेट हर्ट कि स्कूल में तो इसने ये सब बोला था एंड कॉलेज जाके तो इसने कुछ नहीं किया बिकॉज था. कॉलेज में आके सब अपनी पर्सनालिटीज इतनी एक्सप्लोर कर रहे होते हैं. मेरी पर्सनालिटी कुछ और है, इसकी पर्सनालिटी कुछ और है. हम इतने बिजी होते हैं अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, और उस पूरे प्रोसेस में आप कहीं ना कहीं अपने स्कूल बेस्ट फ्रेंड को फिर भूल ही जाते हो. और हमें ऐसा लगता है स्कूल बेस्ट फ्रेंड के साथ इट इज रियली डिफिकल्ट टू शेयर रूम इन कॉलेज एज वेल. बट या देन most of the things depends on your friendship also. So the next question is it okay to feel awkward in starting days? See, I have no idea about this question, so let her answer. मैं awkward नहीं थी ना, starting में awkward थी ना, middle में awkward थी ना, अब end में awkward हो रही हूँ. तो इसको आंसर करने दो. Okay, so to be very honest, yes, it was awkward for the first few days with her because जब हम मिले थे तो हम फ़ोन में ही बात हो रही थी, ऑनलाइन बातें हो रही थी. एंड जब भी हमें फ़ोन में बात हो रही थी तो एक तो हम मतलब ऐसा नहीं कि 24/7 फ़ोन में लगे रहते थे, बात करते थे. एंड जब भी हमारे बीच में बात होती थी तो हम बहुत फ़न वे से बात करते थे, एकदम मतलब 1-2 घंटे बीत जाते थे एंड हमें पता ही नहीं चलता था कि इतना टाइम कहाँ बीत गया.
एंड जैसे हम रूममेट्स बने, हम आए, सो आई थॉट कि मुझे कॉन्स्टेंटली कुछ बात करनी होगी, कॉन्स्टेंटली कुछ मतलब मज़ेदार चीज़ें करनी होगी, वरना फिर ये बोर हो जाएगी मेरे से ऐसे. सो आई रियली थॉट दैट. एंड शुरुआत में जब ऐसे मोमेंट्स आते थे कि जिस मैं लेटी हुई हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रही, एंड वो भी अपने बेड पे लेटी हुई है, वो कुछ नहीं बोल रही, आई यूज टू फील ऑकवर्ड एंड आई यूज टू थिंक कि स्वामी कुछ तो बोलो, यू आर बिकमिंग सो बोरिंग, वाई वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग. जब हम ऑनलाइन में बात करते थे तब तो हम चुप ही नहीं रहते थे, एंड अब देखो कुछ बात ही नहीं हो रही थी. एंड वेयर एज नाउ एज द टाइम वेंट ऑन, एंड आई रियलाइज दैट इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल टू स्टे साइलेंट. आप 24 आवर्स चिपड़ चिपड़ करोगे तो अनोइंग हो जाओगे ना. सो नाउ हमारे साथ क्या होता है, हम रात को आते हैं, सारे फ्रेंड्स जब चले जाते हैं, सो I am in my bed and I watch some videos on phone. She is in her bed and awkward नहीं होता, like हम नहीं बात करते. There's some moments कि हम नहीं बात करते. फिर उसके बाद कुछ ऐसा हो सकता है कि उसने कुछ फ़ोन में देख लिया and we started discuss about it, या फिर हमने गाने चला दिए ऐसे करके. तो वो बात ही नहीं बंद होती. हाँ, वो बात ही नहीं बंद होती. So what I am trying to say is that it's okay to feel awkward in first few days. ऑब्वियसली दो डिफरेंट पर्सनालिटीज मिल रही हैं, उन दोनों की अलग अलग आदतें, और साथ में एक रूम में बंद कर दो तो ऑब्वियसली थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है. बिकॉज यू नो ऑनलाइन में तो आपको नहीं पता लग रहा था कि इसकी क्या हैबिट्स है, मेरी क्या हैबिट्स हैं, मुझे बाथरूम साफ पसंद है तो गंदा ना करके आ जाए. तो ये सारी चीज़ों को लेके बहुत दिमाग में रहता है. फिर आपको रहता है आप बोलो या ना बोलो, बिकॉज यू नो फिर लगता है कि अरे यार कि क्या उसको बुरा तो नहीं लग जाएगा और समथिंग समथिंग. तो बट वही है कि एक रूम में रह रहे हो, स्टार्टिंग में ऑकवर्डनेस होगी, चाहे तुम कहीं भी नहीं, तुम बहुत दिन बाद किसी रिलेटिव के भी घर जाते हो तो तुम ऑकवर्ड फील करते हो, दो वो तुम्हारा रिलेटिव है, स्टिल तुम थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हो कि तुम कहाँ आ गए हो टाइप्स. तो यहाँ तो हमें एक रूम में रहना था, शेयर करना था, एंड वी न्यू दैट वी हैव टू स्टिक बाय ईच अदर अब 3 साल तक. सो ये चीज़ थी दिमाग में. बट मेरे लिए इतना ऑकवर्ड नहीं था बिकॉज आई एम एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू मी. सो मेरे लिए इसलिए भी ऑकवर्ड था बिकॉज आई एम अ सिंगल चाइल्ड. तो घर पे मैं बस अकेले थी एंड विथ माई मॉम एंड डैड. यहाँ आके आई हैव गॉट अ सिबलिंग नाउ, अ बिग सिस्टर नाउ फॉर मी. सो या, तो इसके लिए थोड़ी सी तो एडजस्टमेंट्स वगैरह करनी पड़ी, ऑकवर्डनेस. बट विथ टाइम ये सारी ऑकवर्डनेस भी खत्म हो जाएगी. it lasted for 5 to 10 days max, because you know 5 to 10 days में हम इतना बात कर लिए थे, we understood what she likes, what I like, और उस अकॉर्डिंग सारी चीजें होती हो गई. Until unless you guys want to stick by each other's side, you will get through it. So the third question is how to communicate every time easily without thinking that the other person will feel bad about it. Now you go first, Shruti. Okay, so according to me, the most important thing is timings and the way you convey it. Like for an example, अगर तुम्हें उसके बारे में कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती है या तुम्हें कोई चीज़ उसकी परेशान कर रही है, first thing, she is your best friend, right? You don't have to torture her, you don't have to yell at her, you just have to find out कि वो सही अभी उसका मूड ठीक है ना. You can discuss things with her. तो वैसे भी कहीं लड़ाई तो करने जा नहीं रहो, you just have to discuss what you don't like about her or you want to change something in her, like a habit or something. तो पहले देख लो टाइमिंग्स, वो टाइमिंग करेक्ट है उसका. अगर उसका मूड ऑलरेडी इतना खराब है और तुम तब जाके सारी चीजें बोल रहे हो तो ऑब्वियसली वो हर्ट होगी, तुम्हारी लड़ाई होगी, तुम्हारी कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे. बट अगर वो सही मूड में है तो तुम जाके बात कर लो. सिंपली कम्युनिकेशन इज द की फॉर एवरीथिंग. जस्ट गो एंड कम्युनिकेट, spill your heart out, whatever you feel like telling her. And also the way you convey her. I understand there can be something जो तुम्हें उसके बारे में बहुत इरिटेट करता हो, तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हो, बट उसका भी एक तरीका होता है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू गाइज हैव टू स्टे विद ईच अदर. रात में तुम्हारे साथ ही रहेगी वो, तो तुम्हें आके उससे एक तरीके से बात करनी है. लाइक देयर शुड बी अ वे. यू डोंट हैव टू येल एट हर, यू डोंट हैव टू शाउट एट हर. तुम्हें उसे बस जाके बोलना है कि लिसन, आई डोंट लाइक दिस थिंग अबाउट यू, आई रियली होप कि तुम अपनी ये चीज़ थोड़ी करेक्ट कर लो बिकॉज मुझे अच्छी नहीं लग रही है. खत्म. जस्ट गो एंड टॉक नाइसली, जिससे कि वो अच्छे बैकग्राउंड से आ रही है, अभी उसकी टाइमिंग, अभी कॉन्वर्सेशन करने की टाइमिंग सही है तो मेरे ख्याल से हो जाएगा. सामने वाले इंसान को भी बुरा नहीं लगेगा इफ यू आर डिस्कसिंग, इफ यू आर नॉट मेकिंग अ बिग डील आउट ऑफ इट, यू आर जस्ट डिस्कसिंग थिंग्स यू डोंट लाइक.
it is sorted according to yeah. me. So like you said कि best friend है so वो समझ जाएगी. But what is for the people who don't have their best friend as a roommate? क्या उनके लिए क्या है कि like वो just कुछ ही time पहले मिले हुए हैं अपने, और वो best friends जैसे है नहीं, बस acquaintance जैसे रहते हैं. सी तो उस पे. ऑब्वियसली तुम्हें रहना तो साथ में ही है, थिंग्स हाँ. माय आंसर वुड बी सेम, तुम्हें रहना तो साथ ही में है ना, हम्म. तुम्हारा तरीका अच्छा होगा, वो उसकी टाइमिंग देख के तुम बात करो तो कोई भी बेफालतू में नहीं समझेगा. एंड इफ समबडी लाइक अगर तुम किसी को अपने रूममेट को तुम जो तुम्हारे सिर्फ एक्विंटेंस है, ही और शी इज नॉट योर बेस्ट फ्रेंड, और तुम उसे अपनी कंप्लेंट्स बता रहे हो हम्म. और वो उस चीज को समझ ही नहीं रही है, लाइक एक होता है आप धीरे धीरे चेंज कर रहे हो, बट अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, आप समझ ही नहीं रहे हो आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो यू कैन चेंज योर रूममेट यार. एक्विंटेंस ही तो है, बेस्ट फ्रेंड थोड़ी ना है कि तुम एडजस्ट करो. मतलब तुम हाँ. वही तुम बोल सकते हो, बट वो सामने वाले इंसान पे डिपेंड करता है कि उसको कितना तुम्हारे साथ रहना है और उसको कितना चेंज करना है. लाइक इफ शी टेल्स मी समथिंग, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, आई एम लाइक कि नहीं यार मुझे चीज का ध्यान रखना है बिकॉज उसको वो चीज नहीं पसंद है एंड शी इज माय रूममेट एज वेल, तो मैं वो चीज अपने अंदर चेंज करने की Yeah. कोशिश करूंगी. बट अगर अब सामने वाले इंसान को फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है क्या गलत लग रहा है, तुम अच्छे से उसको बता भी रहे हो, तुम डिस्कस भी कर रहे हो, स्टिल he or she is not changing, then it is time for you to change your roommate then. Obviously. Yeah, so I agree with Shruti ki like communication is a key for every relationship. And first years में मैंने ये गलती कर दी थी कि अगर मुझे उससे कुछ प्रॉब्लम होती थी so I would not share with her, because अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आपको पता है हमें अपनी चीज़ें नहीं शेयर करनी पसंद होती है. वी आर लाइक कि खुद में ही सॉल्व कर लो, क्या दूसरों को बताना जाके. So the same mistake I did, and what happened it was that when we had in second year we had a huge fight. And वो इसलिए था क्योंकि मैं मेरे वो हटाओ, ठीक है. मतलब we had a second huge fight, and when we had a fight I spilled out everything that I didn't like about her, and that too in a really bad way. So it led to a very huge fight, and then I realized ki how important it is to communicate our needs, like our like what we like, our dislikes about our friend. Because अगर आप सोच रहे हो कि अभी नहीं कम्युनिकेट करती हूँ, बाद में लड़ाई में आपको करना ही पड़ेगा. अगर वो आप निकल जाता है गुस्से निकल में, जाता you are है. so frustrated at that moment कि वो निकल ही आता है कि हाँ तुम हाँ, तो निकल ही जाता है. सो इट्स रियली मतलब इम्पॉर्टेंट टू कम्युनिकेट वॉट यू फील. लाइक हाँ, जैसे कि श्रुति ने कहा है कि टाइमिंग देखकर, ऑफकोर्स वो अगर दुखी है तो तभी जाके नहीं बोलना है. वो अगर खुश है, शांत माइंड में है, एंड यू नो कि नाउ शी इज रेडी टू लिसन, देन प्यार से बोलना है उसको. एंड कीप इट इन अ काइंड वे. डोंट एंड बी वेरी conscious about what kind of words you use with people. So yeah, so that's the thing for us, how to communicate. Moving on, the fourth and the last question is, how do you handle fights while staying in one room? You go first. मैं तो लड़ती ही नहीं हूँ. Guys, इधर ही हमारी लड़ाई होती है, आप लाइक देख लोगे. So okay, so number one rule is that we follow, never go to bed angry with each other. So सोने से पहले आप पूरा रिजॉल्व कर लो, जाते नेक्स्ट डे Very एकदम true. फ्रेश उठ पाओ. तो वन थिंग दैट, एंड आप लोगों की लड़ाई हो गई है एंड आप दोनों ही रूम में बंद हुए हो, तो क्या करें. सो व्हाट वी डू इज दैट इफ वी हैव अ फाइट, देन श्रुति गोज आउटसाइड अ रूम फॉर अ वाइल, सो दैट वो अपने गुस्से को थोड़ा काम डाउन करे, मैं अपने गुस्से को थोड़ा काम डाउन करूँ. Basically, we give space to each other. Yeah, we give space to each other. So it is really important to give space to each other until and unless the other person is ready to talk. Once you both are like shant, now like you can think collectively, you're not in emotions, then slowly start discussing what exactly happened, how did you feel, like what made you feel like this, what made you feel this way. So the main important thing is to give space. According to me, obviously space is very important. Like you should give space सामने वाले इंसान को अगर वो state of mind में नहीं है to talk to you. Also, इसने बोला we never go to bed angry because we know this friendship is very precious. This bond is very precious. I don't want to ruin it. I don't want to ruin it for some small fight. And then secondly, we come, we sit, we talk, and we discuss ki what's hampering us, and
इवेंचुअली एवरीथिंग सॉर्ट हो जाता है. और ऐसा होता है कि हाँ, कुछ टाइम लगता है. ऑब्वियसली आपने कुछ बड़ा कर दिया, आप हर्ट हो, उसमें टाइम लगता है प्रोसेस का. पर ट्राई टू अंडरस्टैंड where she is coming from, you know. You Yes. have to give her that space, that mental peace. If you don't want to talk with me, it's fine, but I am there for you, like I'm standing behind you. So उसको वो चीज फील करा दो. yes guys, and she is your best friend. आप best friend के साथ मतलब vulnerable हो सकते हो. College life is a roller coaster ride, I must tell you. Yeah, तो उसमें तुम्हें लास्ट में at the end of the day you need that one person who can hear you. hear you. और वो तुम्हारी रूममेट ही बनती है most of the time. ऐसा Yeah, होता yeah. है. Guys, I feel so lucky to have a roommate like her because इसके सामने मैं क्या हुआ? कट कर दूंगी. क्यों? अरे नहीं बोल. हाँ, क्योंकि इसके साथ मैं like I can be fully 100% of myself, and I'm not afraid to show any kind of emotions in front of her. So yeah. I also want to say thanks to this beautiful person for being an amazing roommate and my best friend in this college life. She's my safe home where I can live with no face mask on. And thank you for introducing me to the world where fight loses and love wins. That's all I want to say about her. She also has a YouTube channel, Being with Somi. I'll put link to her channel in my description box, so please go and check out her channel. I hope we answered all of your questions and you are satisfied with our answers. So bye, फिर मिलेंगे. Bye guys.